Hey guys, hi and welcome to Unacademy. This is me, Sona Singh, your teacher for biology. Welcome to our beautiful and amazing channel, Let's Crack Foundation and NTSE. Hi Amlan, I'm going to miss you people, especially Amlan. I don't think you're. Acha, obviously you have classes, but I see very less of you today, these days. But that's okay, no worries. Okay, good evening, everyone. I hope सब बढ़िया है. All of you had an amazing. But that's okay. No. Okay, sorry, that was my iPad. So, guys, I hope all of you are doing good. All of you are doing well, and सब चंगा, सब चल रहा है. Schools बहुत अच्छे से चल रहे हैं. अभी तो सबके ऑनलाइन स्कूल्स ही चल रहे होंगे. Obviously, we have the third wave knocking on our doors, which is not good, right? So, well, how's school? How's everything? Come on, guys. Come on, come on. Where's everyone? I can see. So did you trim? Yeah, when at home, you're like, you can do a lot of stuff. Oh, and I missed my glasses once again. Yes, I did. Yeah. Sorry, sad school classes 1:30, so could not attend the class. कोई बात नहीं बेटा, that's okay. But you always have access to the recording. And आज हमने प्रोटिस्टा पढ़ा था ना ऐप में, तो कल क्विज है सुबह सुबह, तो वहाँ पे वो हो जाएगा. Don't worry. ठीक है. So guys, I hope all is good and. A brief update. What we have done is starting next month, me, Soumya ma'am and I, we are going to come together to sort our biology lectures in a better way for you so that आप confused ना हो, क्योंकि I think अभी क्या हो रहा है कि बहुत confusion भी create हो जाता है बच्चों के लिए. So maybe we'll divide grades, है ना, कोई एक grade मैं पढ़ाऊंगा, कोई एक grade वो पढ़ाएंगी, right? So आपके लिए काफी वो अच्छा रहेगा. Guys, just give me one quick moment. I just need to get my glasses. I forget these things now. I don't know why. Maybe my memory is working weak nowadays. Okay, good. Yes. Sorry. Okay. So guys, well, you already know who are we. Unacademy, largest channel, largest learning platform. And how do you get a free 10% off? Simply use the code SONA05, right? Oh, periodic exam will be conducted offline. Wow. Guys, मेरा एक प्लस कोर्स लॉन्च हो चुका है, बैच कोर्स लॉन्च हो चुका है फॉर एनटीएससी स्टेज 1. इस बैच कोर्स में आपका 21 जुलाई से लेके 31 अक्टूबर तक आपका पूरा पूरा एनटीएससी स्टेज 1 प्रिपेयर होगा, राइट? ऐसे ही एनटीएससी स्टेज 2 के लिए भी एक कोर्स लॉन्च हो चुका है. वी हैव आल्सो लॉन्च्ड अनदर बैच फॉर एनटीएससी स्टेज 2 जिसका नाम है लेट्स क्रैक एनटीएससी स्टेज 2. आप देख सकते हो इसमें यू हैव अमेजिंग टीचर्स. यू हैव विंध्या राव मैम, रजनीश सर, सार्थक सर, right? So guys, a lot of different courses are always periodically launched so that we can help you a lot better, right? अगर कोई नया बच्चा है तो you already know who am I, right? I'm Sona Singh. I'm biology educator here at Academy, and आज हम न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. प्राइसिंग, बेटा प्राइसिंग चलो मैं अभी बता देता हूं. मैं एंड के लिए प्राइसिंग रिजर्व करके रखता हूं, बट मैं अभी बता देता हूं, ठीक है? सो गाइस, आपको पता है अनअकैडमी में दो तरह के सब्सक्रिप्शंस होते हैं, अनअकैडमी प्लस एंड अनअकैडमी आइकॉनिक. दोनों में डिफरेंस क्या है बेटा? प्लस में यू गेट टू बी अ पार्ट ऑफ अ बैच. You have obviously top educators. You have हर चौथी क्लास डाउट सेशन होती है, right? You have a lot of test series, a lot of mock tests, a lot of mentorships, right? All of that is there. Comprehensive syllabus, पूरा आपका आप अपने लैंग्वेज में पढ़ सकते हो. नाउ द फायदा इज द लॉन्गर ड्यूरेशन यू पिक द लेस विल बी प्राइस. जस्ट 800 पर मंथ, विच इज लेस देन योर ट्यूशन फीस. आपके ट्यूशन फीस से भी कम होती है. और इसके ऊपर भी अगर आपने कोड यूज कर लिया SONA05, व्हाट इज माय कोड? SONA05. तो ये कोड यूज करते ही आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है, right? So guys, using this code gives you a new price just 722 rupees per month. And मेरा Apple फिर से एक्टिवेट हो गया बेमतलब का. Okay, come on Apple, just go out. Not needed. Okay, just 1 minute, guys. Yeah, that's cool. Okay, so guys, this is an amazing deal. Now
अब आप बोलोगे सर आइकॉनिक क्या है? बेटा आइकॉनिक में प्लस के सारे फीचर्स मिलते हैं, but this is where you get a personal coach as well. There is a person, dedicated mentor, who would be taking care of all your educational needs, and you can always seek guidance from him. Your parents can talk to him as well. There's a lot of planning, a lot of more practice, and a lot of very extensive preparation. Generally, this is how we do it for, you know, very competitive exams. So guys, ये इसके pricing है for 12 and 24 months, and यहाँ भी आपका कोड SONA05 applicable होता है, right? So guys, check out these subscriptions and don't worry, पहले आप free classes try कर लो. First check out the free classes. कैसे check out करना है? Just install the Unacademy का आप Unacademy का ऐप इंस्टॉल करो, वहीं पे आपको फ्री क्लासेस आप चेकआउट कर सकते हो जस्ट बाय यूजिंग द कोड SONA05. ठीक है, ओके चलो अब आते हैं न्यूरॉन्स की बात पे. नाउ वी विल गो टू टॉक अबाउट न्यूरॉन्स. और पिछली क्लास में, एंड आई विल, डोंट वरी, आई विल इलैबोरेट ऑन दैट एज वेल. हाय प्रकृति, गुड इवनिंग बेटा. सो गाइस, पिछली क्लास में हमने क्या क्या न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ा था आप मुझे बता दो. ये तो बस एक समरी है. दिस इज जस्ट अ समरी ऑफ व्हाट वी लर्नड इन द लास्ट क्लास, बट राइट नाउ आई वांट यू पीपल टू टेल मी ब्रीफली कि हमने क्या क्या पढ़ लिया था, राइट? और अभी अभी जल्दी से अपना नोटबुक खोल लो. मैं भी व्हाइट बोर्ड खोलने वाला हूं जिसमें मैंने आपको न्यूरॉन के बारे में सभी चीजें पढ़ाई थी, इन विच आई टोल्ड यू ऑलमोस्ट एवरीथिंग अबाउट न्यूरॉन्स. यस यस यस, खुल जा सिम. व्हाई इज नॉट ओपनिंग? खुल गया. Come on guys, I talked a lot about neurons. जल्दी से क्विकली टेल मी. आप लोग मुझे बताओ पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ा था. देखो मैं अगर दिखा दूंगा तो फायदा नहीं है, तो इससे बेटर है कि सिर्फ मैं दिखा दूं. आप जल्दी से बताओ पिछली बार में क्या पढ़ा था. पिछली क्लास आपकी हुई थी सैटरडे को, तो जल्दी से मुझे बता दो कि क्या क्या पढ़ा था पिछली क्लास में. बेटा कम ऑन गाइज, एवरीवन. सो व्हाट इज साइनैप्स? प्रकृति मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा, कोई बात नहीं. सम्यक इज हियर. प्रोपगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल एक्सॉन मैंने अटेंड नहीं किया था. सीबीएसई कैटेगरी पे कोर्स लाओ ना बेटा, मैं फाउंडेशन कैटेगरी में हूं, तो यू नो दैट्स सॉर्ट ऑफ नॉट पॉसिबल. ओके गाइस, फोकस है ना. सो ये रहा मेरा व्हाइट बोर्ड. सो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? अ क्विक रिविजन. सबसे पहले हमने बोला था कि नर्वस टिश्यू में, sir, is it useful for NTSE? Definitely it is useful for NTSE, right? So guys, nervous system में सबसे पहले हमने बोला कि there are neurons and there are glial cells. हमने बोला लगभग 50-50 रेशियो है, बट आपके ब्रेन में your brain has more glial cells, almost 1:10. हमने glial cells के कुछ नाम पढ़े. क्यों पढ़े? हमने बोला कि भाई ये नाम हमसे कभी पूछा नहीं जाएगा, बट अगर ये नाम आ गया तो हमें पता होना चाहिए कि ये ग्लियल सेल की बात हो रही है. फिर हमने बोला नो बेटा, दिस इज नॉट द फर्स्ट लेक्चर, दिस इज द सेकंड लेक्चर, ये दूसरा लेक्चर है, ठीक है. फिर हमने बोला ग्लियल सेल्स जो श्वान सेल्स होते हैं, जो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होते हैं, एपेंडाइमल सेल्स हैं, ये 3 नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हमें पूछा जा सकता है, हमें इसके बारे में पूछा जा सकता है. जल्दी से कोई मुझे बता दो श्वान सेल और ओलिगोडेंड्रोसाइट का काम क्या है. किन्हीं लोगों ने तो लेक्चर अटेंड जरूर किया होगा. जल्दी से मुझे बता दो श्वान और ओलिगोडेंड्रोसाइट का फंक्शन क्या है. कम ऑन. हाँ जी बेटा जी, एनीवन हु रिमेंबर्स व्हाट इज द फंक्शन ऑफ श्वान सेल एंड ओलिगोडेंड्रोसाइट? इट्स नॉट द फर्स्ट लेक्चर, आई डोंट नो. अमलान, दैट लीव दैट. ये फर्स्ट लेक्चर नहीं है बेटा, ये सेकंड लेक्चर है. मैंने ये भेजा भी था, भेजा था या नहीं भेजा था? वेरी गुड सम्यक. दे फॉर्म माइलिन शीथ, है ना, वो एक माइलिन शीथ बनाते हैं. हमने अपने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा था. वी टॉक्ड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन. हमने बोला था एक्सपैंडेड पार्ट साइटोन है, लंबा वाला पार्ट एक्सॉन है, हमारे पास डेंड्राइट्स होंगे, है ना. साइटोन विल रिजेंबल अ सेल, हमने ये भी पढ़ लिया था, राइट. वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट माइलिन शीथ इंसुलेशन का काम करता है, हमने पढ़ा था ये. हमने नर्व एंडिंग्स के ऊपर जो एक्सपैंडेड पार्ट है उसको बोला था साइनेप्टिक नॉब, है ना. और हमने बोला था कि इन साइनेप्टिक नॉब से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते, राइट. इन साइनेप्टिक नॉब से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते. ये देखो, ये लंबा सा डायग्राम हमने एक्शन पोटेंशियल का बनाया था, ठीक है. सम्यक, यू हैड अ डाउट, इज इट क्लियर नाउ?
सम्यक यू हैड अ डाउट, आई क्लैरिफाई दैट इन द मॉर्निंग आई थिंक सेशन में. अब क्लियर है ना, उसमें कुछ फंस तो नहीं रहा. सो व्हाट आर सेंसरी रिसेप्टर्स? सेंसरी रिसेप्टर्स कैन सेंस चेंज इन द सराउंडिंग. ठीक है, वो आपकी सराउंडिंग में चेंजेस को सेंस कर सकते हैं. दिस इज फर्स्ट वीडियो. नो बेटा, दिस इज नॉट द फर्स्ट वीडियो, दिस इज द सेकेंड वीडियो. फर्स्ट वीडियो हो गया, फर्स्ट वीडियो में यही सब पढ़ा था. ओके गाइस, फर्स्ट वीडियो में ही ये सब पढ़ा था. ओके, वो आपको मिल जाएगा, वीडियोस में जाओ, आपको मिल जाएगा फर्स्ट वीडियो. राइट, सो हमने पढ़ा कि जैसे ही डेंड्राइट्स के पास कुछ चीजें अंदर बाहर होती हैं, इनफ वोल्टेज डिफरेंस हम क्रिएट कर देते हैं, सोडियम चैनल्स खुल जाते हैं. सोडियम चैनल्स के खुलते ही हमारा मेम्ब्रेन जो पहले वोल्टेज डिफरेंस कैरी करता था, पोलराइज्ड था, उसकी पोलैरिटी, उसका वोल्टेज जस्ट उल्टा हो जाएगा. पोलराइज्ड बिकम्स डीपोलराइज्ड, और यही वोल्टेज डिफरेंस आगे कैरी ऑन करेगा. ठीक है सर, क्लियर? बट स्टिल डोंट नो हाउ द एक्शन पोटेंशियल रीच द एक्सॉन. व्हाट इज द मैकेनिज्म? ओके ओके, ठीक है गाइस, गाइस गाइस इसको देखो, इस क्वेश्चन को देखो. दिस इज माई रूम, राइट? दिस इज माई रूम, ये मेरा रूम है. ठीक है, ठीक है, ये मेरा रूम है. ओके, दिस इज अ दरवाजा, राइट? दिस इज अ दरवाजा एंड दिस इज मी. ओके, सम्यक ध्यान से इस एनालॉजी को सुनना, आपको समझ में आ जाएगा. सो गाइज, दिस इज माई रूम, दैट इज अ दरवाजा एंड दैट इज मी. मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? मैं हूं समय. पुराने महाभारत में आता था, मैं हूं समय. सो हु एम आई? आई एम अ सोडियम चैनल. आई एम अ सोडियम चैनल, राइट? मैं क्या हूं? आई एम अ सोडियम चैनल. मेरा नया नाम क्या है? सोडियम चैनल. सो हाउ प्लीज कैन क्रैक एनटीएसई फ्रॉम नाउ? बेटा आप पुराने लेक्चर्स को रिवाइज कीजिए, नए माइंड मैप सेक्शन को देखिए. ठीक है, सो गाइज मैं क्या हूं? मैं हूं सोडियम चैनल. सोडियम चैनल बाहर जाना चाहता है. सोडियम चैनल खोल के, मैं सोडियम हूं, वो दरवाजा सोडियम चैनल है, राइट? मैं सोडियम हूं, दरवाजा सोडियम चैनल है. मैं बाहर जाना चाहता हूं, राइट? मैं बाहर जाना चाहता हूं, बट मैं बाहर तभी जाऊंगा जब अंदर बहुत ज्यादा धूल भर जाएगी. अगर गलती से अंदर बहुत ज्यादा धूल भर जाएगी, आप सभी को पता है आई एम वेरी मच एलर्जिक, है ना? जब भी मैं अपने अपने होम टाउन आता हूं, मैं एलर्जी से के कारण बीमार पड़ जाता हूं, है ना? You all have seen me getting sick when I come back to home, right? So one way for you to get me outside is for you to give enough dust. अंदर इतना कचरा भर दो कि मैं खुद दरवाजे खोल दूं, राइट? तो बेटा जो सोडियम चैनल है, सोडियम चैनल एक वोल्टेज से खुलेगा. जैसे ही वो वोल्टेज आएगी, सोडियम चैनल खुल जाएगा. अब ये वोल्टेज कहां से लाऊं मैं? वेयर शुड आई गेट अ वोल्टेज? मैंने क्या किया? मैंने छोटी सी विंडो बनाई. ये छोटी सी विंडो बनाई. अब ये छोटी सी विंडो जो है ना, ये हल्का सा हवा आएगा. इफ देयर इज स्लाइट विंड, दिस छोटी सी विंडो विल ओपन. इफ देयर इज स्लाइट विंड, दिस छोटी सी विंडो विल ओपन, राइट? अब ये खिड़कियां क्या हैं? सम्यक, these are your receptors. These are your receptors on the dendrites. Dendrites के ऊपर receptors लगे हुए हैं. अगर मम्मी बिरयानी बना रही है, अगर मम्मी इज मेकिंग बिरयानी, बिरयानी के मॉलिक्यूल्स मेरे हवा की तरह काम करेंगे और इस खिड़की को खोल देंगे. They will open the window. खिड़की को खोल देंगे. खिड़की को खोलते ही अंदर डस्ट आ जाएगा. कितना आएगा? उतना डस्ट नहीं आएगा कि मैं बीमार पड़ जाऊं, बट इतना डस्ट आ जाएगा कि मैं इरिटेट होके दरवाजा खोल दूं, राइट? उसी तरह आप करते क्या हो? व्हाट यू वांट टू डू इज, आपका डेंड्राइट्स से आप बस इतना वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट करना चाहते हो कि सोडियम चैनल खुलने लगे.
नाउ आई नो आपके लिए इमेजिन करना इसलिए मुश्किल है क्योंकि आप एक मैक्रो वर्ल्ड में रहते हो। यू लिव इन अ मैक्रो वर्ल्ड जहां आपकी खिड़कियां और दरवाजे एक एक और दो दो मीटर्स के होते हैं। बट मैं चाहता हूं आप इमेजिन करो, व्हाट इफ ऑल ऑफ दिस वाज अ माइक्रोमीटर। What if all of this was a micrometer? अगर ये सब माइक्रोमीटर में होता तो सोचो, अगर मैं इलेक्ट्रिक वायर से इतनी दूरी पे अपना हाथ रखूं, आई विल नॉट गेट एन इलेक्ट्रिक करंट। वाई? सेंटीमीटर्स, 1 सेंटीमीटर दूर है, बट बिकॉज ये माइक्रो स्केल्स पे हो रहा है, कुछ सोडियम आयंस का अंदर आना बाहर जाना विल क्रिएट इनफ वोल्टेज डिफरेंस कि दरवाजे को खुद खोल दिया जाए। मैक्रो वर्ल्ड, बड़ा दुनिया, ये बड़ी दुनिया है ना, सब कुछ मीटर्स और किलोमीटर्स में होती है, लेकिन ये तो माइक्रो वर्ल्ड की बात हो रही है, छोटे से सेल की बात हो रही है। ठीक है, क्या क्लियर है? अभी भी डाउट है तो बोलो, आई विल ट्राई टू कम अप विद सम अदर एनालॉजी। अभी भी डाउट है तो बोलो। हम सिर्फ उतना वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट करना चाहते हैं कि मैं खुद दरवाजा खोल दूं। ठीक है, ओके, ठीक है। नाउ सर, हाउ कैन आई क्रैक एनटीसी? बेटा प्रिपरेशन शुरू कीजिए। आप इसका सवाल मत ढूंढिए कैसे, आप करना शुरू कीजिए, अपने आप रास्ता खुल जाएगा। सर, सो डज द वोल्टेज क्रिएटेड इन द डेंड्राइट्स ट्रैवल द सेम वे एज एन एक्सॉन? दे डोंट नीड टू, they don't need to travel, but yes, some difference is created. They don't need to travel. It's not a big difference beta, it's not a big difference। क्योंकि देखो अगेन यहां पे पता है प्रॉब्लम क्या है, मैं बताता हूं बेटा प्रॉब्लम क्या है, आप लोग क्यों फंस रहे हो। क्योंकि आपको किताबों में एक सेकेंड, हाँ, आपको किताबों में न्यूरॉन का ऐसा पिक्चर दिखाया जाता है। आप सोचते हो कि साइटोन इतना बड़ा होगा, एक्सॉन इतना बड़ा होगा। अब मैं आपको दिखाता हूं सच में कैसा होता है। लेट मी शो यू सच में कैसा होता है। शायद मैं आज माइक्रोग्राफ लेकर आया हूं। अब ये देखो, ये छोटू सा नन्हा सा साइटोन है। अब देखो कितने नजदीक है। तो अगर यहां पे मैं वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट कर रहा हूं ना, तो एक्सॉन पे वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। इट्स नॉट दैट फार। वही ना, आप अभी मैक्रो वर्ल्ड में देख रहे हो, आप ये इलस्ट्रेटिव डायग्राम पे देख रहे हो। दिस इज एन इलस्ट्रेटिव डायग्राम, बट बेटा असलियत में दीज आर ऑल माइक्रो स्केल्स। सो उतना डिफरेंस काफी हो जाएगा, राइट, काफी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ओके, सो गाइज इन द लास्ट क्लास वी वर टॉकिंग ऑल अबाउट, पिछली क्लास में हम सिर्फ न्यूरॉन में कंडक्शन की बात कर रहे थे। ओके, वेलकम समय। ठीक है, सो हमने न्यूरॉन के अंदर कंडक्शन की बात कर ली, हमने न्यूरोट्रांसमीटर्स का बात कर लिया। सर कोई क्विज है क्या ऐप पर? बेटा अभी कैसे क्विज होगा, अभी तो यहां हो रहा है। देयर वुड बी क्विज बट मेंटी नहीं होगा अभी, नो मेंटी राइट नाउ। देयर वुड बी 5-6 क्वेश्चंस। ठीक है, थैंक यू सो मच संचित। सो गाइज अभी तक मैं एक मैप बता दूं हमने क्या क्या कर लिया और अब आगे क्या करने वाले हैं। अभी तक वी अंडरस्टूड नर्वस टिश्यू, अभी तक हम बस इतना समझ पाए हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है? वी विल ट्राई टू स्टार्ट अंडरस्टैंड प्रोसेसिंग। सो गाइज जब आप न्यूरॉन्स की बात करते हो, वी डिवाइड न्यूरॉन्स इनटू 3 टाइप्स, 3 टाइप्स के बोलते हैं हम। क्या क्या बोलते हैं? सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स एंड इंटरन्यूरॉन्स। डोंट वरी, मैं आपको सब समझा दूंगा। ठीक है, ये समझने के लिए हम थोड़ा सा आगे जाएंगे और फिर वापस वहां पे आएंगे। ये समझने के लिए एक सेकेंड, सॉरी मैं गलत जगह लिख रहा हूं, फिर आपको शेयर करने में इश्यू होगा। हाँ, ये समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा नर्वस सिस्टम। सो व्हाट इज अ नर्वस सिस्टम? क्या है नर्वस सिस्टम? अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स इन योर बॉडी, आपके शरीर में ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स विच परफॉर्म्स 3 जॉब्स। व्हाट आर द 3 जॉब्स? क्विकली जल्दी से मुझे बता दो, व्हाट आर द 3 जॉब्स? हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था। व्हाट आर द 3 जॉब्स परफॉर्म्ड बाय योर नर्वस सिस्टम? गाइस क्विकली, जल्दी जल्दी, एकदम चैट में फटाफट।
मुझे पता है आप लोगों ने अटेंड नहीं किया, कुछ लोगों ने नहीं किया होगा, बट कुछ लोगों ने किया है बेटा। सीरीज वाइज, सीरीज वाइज, सीरीज वाइज बेटा अमलान, सीरीज वाइज। पहला, फिर क्या, फिर क्या। नर्वस सिस्टम के 3 काम। सबसे पहला काम सेंसिंग, इन्वायरमेंट में हो रहे बदलाव को सेंस करना। दूसरा, इंफॉर्मेशन को जहां भी सेंस किया उसको पास करो। एंड तीसरा, उसको प्रोसेस करना। एंड चौथा, उसको स्टोर करना। ये 4 मेजर काम होते हैं नर्वस सिस्टम का, राइट। सो नर्वस सिस्टम को हम 2 पार्ट में बांट देते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सॉरी फॉर द स्पेलिंग एरर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हम नर्वस सिस्टम को 2 पार्ट में बांटते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल बोले तो इट इज द प्रोसेसिंग सेंटर। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ही सारी प्रोसेसिंग होती है एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ही सारा स्टोरेज होता है, राइट। सो इट्स जस्ट लाइक योर सीपीयू। आप कंप्यूटर में पढ़ते होगे ना सीपीयू। सो गाइस, इट इज नथिंग बट अ प्रोसेसिंग सेंटर, राइट। इट्स जस्ट अ प्रोसेसिंग सेंटर। तो मैं जो बोल रहा हूं ना, ये आवाज आपके कानों पर पड़ रही है। आपके कानों में रिसेप्टर्स होंगे, वो रिसेप्टर्स इंफॉर्मेशन को ब्रेन के पास पहुंचाएंगे। ब्रेन उसको प्रोसेस करेगा और स्टोर भी कर सकता है। सो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज अटैच्ड विथ sensing the information and passing the information. To whom? Sensing and passing to whom? To central nervous system, so that the central nervous system can come up with a decision, and give the command. ठीक है, the central nervous system can come up with a decision and give the command. इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछो। सर आपसे अच्छा संशित, देखो इस महीने तक मेरे जो सेशंस हो रहे हैं वो सिर्फ एनटीएससी लेवल तक नहीं हो रहे, वो NSEJS IJSO लेवल तक हो रहे हैं। अगले महीने से मैंने और सौम्या मैम ने आपस में बात करके एक प्लान बनाया आप लोगों के लिए, एक कमाल का प्लान, जिससे हम सारी कंफ्यूजन को एलिमिनेट कर दें इस चैनल पे, राइट। वो प्लान हम आपसे जल्दी शेयर करेंगे, राइट। ओके, डोंट वरी। अभी के लिए जो मेरे लेक्चर्स हैं वो NTSE, NSEJS और IJSO लेवल के हैं। सौम्या मैम के जो लेक्चर्स हैं वो NTSE लेवल के हैं, है ना। अभी ऐसा डिवीजन है, हम इस डिवीजन को रिवॉल्यूशनाइज करने वाले हैं। ओके, क्लियर है। इसमें डाउट है तो पूछो, वरना मैं फिर आगे बढ़ूंगा। सर प्लीज टेल मी एग्जांपल ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। कान, आंख, the nerves in your body that are carrying the information, right? The touch, ये क्या है? सब सेंस कर रहा है ना बेटा। So this is sensing the information, carrying it to your brain. Okay? So peripheral nervous system senses and carries. Central nervous system makes sense of it. Yes, Aviral. Very accurate, very accurate. इसी के बेसिस पे हमने न्यूरॉन्स को बांट से ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। वेरी ट्रू अमलान, इट कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। वी विल इलैबोरेट ऑन दिस, डोंट वरी, राइट। सो व्हेन वी डिवाइड न्यूरॉन्स, वी डिवाइड देम एज सेंसरी न्यूरॉन्स और afferent neurons, motor neurons और efferent neurons। सेंसरी न्यूरॉन्स जो है रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन को सीएनएस तक लेकर जा रही है। बेटा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एग्जांपल क्या है, देखिए यहां पे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। सो सेंसरी और एफरेंट आर द सेट ऑफ न्यूरॉन्स जो मैसेज को लेकर ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड तक। सम्यक, योर मैसेज गॉट रिट्रैक्टेड, कैन यू टाइप इट अगेन। बेटा थोड़ा सा ना मैसेज को
यार ये ना यूट्यूब है यार, मैं क्या बोलूँ, ये कर लेता है डिटेक्ट, आई डोंट नो व्हाई. आई एम सो सॉरी दैट इट हैपेंड, बट it's not exactly in my hands, right? Samyak, I am very sure you must have asked a very reasonable doubt, but just type it again. It got retracted, and try to type it in 2 parts, maybe. Okay. So sensory or afferent means वो information को लेके आपके CNS तक जा रहा है. मोटर का मतलब वो कमांड्स को लेकर आपके ऑर्गन तक जा रहा है. It is carrying the commands. What are interneurons? Interneurons are abbreviations for central and peripheral. Yes, they are abbreviations. Oh, I didn't tell you that. Oh my god. देखा मैं कितना भूलता हूं. So guys, CNS जो मैं बार बार बोल रहा हूं ना, that is the central nervous system, और मैं PNS जो बार बार बोल रहा हूं, that is peripheral nervous system. That's it. ठीक है. So interneurons are the neurons that do the talking. आम भाषा में बोलो, they do the talking. बायोलॉजिकल भाषा में बोलो, they process the information. आपका brain and spinal cord is filled with a lot of interneurons that all the time talk with each other. So what are relay neurons? Okay, sometimes you can call interneurons as relay neurons, but I would not bring it right now. F and if, F coming towards, if taking away. Sir, are there more than 5 senses which we have been learning? Beta, there are tens and tens of senses. I don't exactly remember the number of receptors. Don't worry, हम receptors पे आएंगे. So सम्यक वो जो है ना 5 senses वाला थिंग, वो बहुत पुराना है. अब शायद 50-60 senses हैं. Exactly मुझे वो नंबर याद नहीं है. ठीक है, हम जब receptors पढ़ेंगे ना peripheral nervous system में सम्यक, I'll tell you about them, right? There's this thermoreceptors, nociceptors, proprioceptors, पता नहीं क्या क्या. Don't worry, हम उस पे आएंगे. Right? We'll come to that. Osmoreceptors, yes. There's a lot of them, and we'll talk about it. Don't worry. ठीक है? बेटा associating interneurons, relay neurons सब एक ही नाम है. But interneurons is the most appropriate description. ठीक है? इतना क्लियर है? Yes guys? Okay. अगर इतना क्लियर है तो चलते हैं हमारे PPT पे. Let's go to our PPT. So रिफ्लेक्स एक्शन कवर्ड? नो, रिफ्लेक्स एक्शन आपका पीएनएस में कवर्ड होगा. सीएनएस तक हम चीजों को बिल्कुल कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, क्योंकि सीएनएस खुद में बहुत कॉम्प्लिकेट होने वाला है. राइट? हम सीएनएस तक चीजों को बिल्कुल कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, बिकॉज सीएनएस खुद बहुत कॉम्प्लिकेट होने वाला है. सो गाइज, यू हैव सेंसरी न्यूरॉन्स, यू हैव इंटरन्यूरॉन्स एंड यू हैव मोटर न्यूरॉन्स. ठीक है, ये होते हैं आपके 3 तरह के न्यूरॉन्स. अब 1-2 क्वेश्चन करते हैं, जस्ट टू चेक हाउ मच डू वी रिमेंबर. Why do I forget? It's a question that I don't have the answer for. Let me, एक second, beta ji, एक second. Yes, that's sorted now. That's also sorted now. ठीक है. Yes. Yes. Sir, are all sensory neurons, sir, are all sensory neurons intentions? मैं समझा नहीं सम्यक. I'm confused. I'm confused. Could you just rewrite that? Are all sensory neurons? बेटा मैं समझा नहीं. Please write that. I know. Happens with me a lot. Autocorrect. Guys, come on. तब तक ये आंसर करो. In the chat box, simply type ABCD, that's it. बस ABCD एक बार टाइप कर दो. मेरी नजरें बहुत अच्छी है, मैं देख ले. सर, are all sensory neurons bipolar neurons? No, not exactly. Okay? Eyes में जो न्यूरॉन्स हैं वो बाइपोलर है, कुछ टंग में भी बाइपोलर होते हैं, बट नॉट एग्जैक्टली. ठीक है? Yes. So guys, how does the transfer of information takes place? It takes place via voltage changes. वो voltage changes से होता है. Nervous damage to brains are serious. Brains में हो रहे damages बहुत serious होते हैं, because new neurons are hardly produced. What is meant by bipolar? अभी करेंगे बेटा. हितरत, don't worry, अभी करने वाले हैं. We'll talk about that as well. Very good. A and R, nervous damage to the brains are serious because new neurons are
hardly produce. बिल्कुल सही बेटा. So guys, this is a thing that your neurons are very very smart. Believe me or not, there's a famous saying, your brain is actually smarter than you, right? So आपका न्यूरॉन्स की जो ये हाई एनर्जी एफिशिएंसी है, ये वोल्टेज है, दिस कम्स एट अ कॉस्ट, है ना? कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है. योर न्यूरॉन्स आर वेरी स्पेशलाइज्ड, बहुत स्पेशलाइज्ड हो चुके हैं बेटा, राइट? एंड द कॉस्ट ऑफ दिस स्पेशलाइजेशन इज दे लूज द एबिलिटी टू डिवाइड. वो अपनी डिवीजन की करने की एबिलिटी खो चुके हैं. लेकिन देयर आर सम प्लेसेस जहां पे न्यूरॉन को पैदा करने वाले स्टेम सेल्स होते हैं, एंड दीज स्टेम सेल्स कैन प्रोड्यूस न्यू न्यूरॉन्स. ऐसे स्टेम सेल्स आपके ओल्फैक्टरी एपिथेलियम, द एपिथेलियम ऑफ योर नोज में पाए जाते हैं, आपके हिपोकैम्पस रीजन में भी पाए जाते हैं. हिपोकैम्पस नाम सुन के घबराना मत, इट्स अ पार्ट ऑफ योर ब्रेन दैट इज कंसर्न विद मेमोरी. ओके सर, क्या बोर्ड लेवल का नहीं पढ़ाते क्या? नहीं बेटा जी, बोर्ड लेवल का मैं नहीं पढ़ाता बेटा. ये कौन सा चैनल है? लेट्स क्रैक फाउंडेशन इन एनटीएससी. बोर्ड का कौन सा चैनल है? अनअकैडमी 9th and 10th, है ना? देयर इज अ डिफरेंस इन बोथ दीज चैनल्स. वहां पे आपको बोर्ड के लेवल की तैयारी कराते हैं, यहाँ पे हम फाउंडेशन एनटीएससी कराते हैं ना बेटा. अगर मैं यहाँ भी बोर्ड का पढ़ाऊंगा तो कैसे काम चलेगा बताइए? I saw meme, British smart is the most important. Yeah, Amlan, that's good. According to brain, yeah. Okay, so guys, okay. Now, अभी जो हमने न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ा, लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद हम फिर से कॉन्सेप्ट्स पे आएंगे. Myelinated neurons conduct faster. They allow rapid flow of electrons. Myelinated neuron, which part is concerned with emotion? बेटा, that is the limbic system. Limbic system के components को हम briefly पढ़ेंगे. Don't worry, we'll talk about amygdala, we'll talk about hippocampus, थोड़ा थोड़ा brief नाम और functions हम पढ़ेंगे. Don't worry. Hi Ojas. Exactly, Amna. There are multiple channels, but sort of. Okay, come on guys, come on. Everyone, answer please. Answer in the chat box, guys. I'm not getting answers. और बेटा अपने दोस्तों को ये सेशंस शेयर करो. Ask them to come in the sessions and check them out themselves obviously. And do remember to like the session. Session को like जरूर करना, because that will help us to gauge how well or not well we are doing. Yes, myelinated neurons conduct faster. That is very true. They allow rapid flow of electrons. That is absolutely false. बेटा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में कोई छेड़छाड़ नहीं हो रहा. And it's not the electrons that flow, it's always the ions. But myelinated neurons allow saltatory conduction. Saltatory conduction बोले तो जहां पे myelin sheath है, the impulse need not travel through ionic exchanges at that point, right? अगर it's like किसी ने वो मूवी लॉर्ड ऑफ रिंग्स देखा है किसी ने? How many of you have seen लॉर्ड ऑफ रिंग्स? लॉर्ड ऑफ रिंग्स किसने देखा है? How many of you have seen लॉर्ड ऑफ रिंग्स? So लॉर्ड ऑफ रिंग्स में ना एक सीन होता है. Okay, I will tell you what is the scene. The scene is there is this there is this city called Rohan. Okay, there is this city called Rohan. Rohan has got an army, right? And there's this another city, right? एक और सिटी है, उस सिटी का मुझे नाम याद नहीं आ रहा. Gondor, yeah, there's this city called Gondor, right? So Gondor and Rohan are very far. So Lord of Rings same as Hobbit. Hobbits are a part of it. Hobbit is actually a prequel. वो जो the Hobbit वाला sequence है उसका prequel. So Gondor एक राज्य होता है और रोहान एक राज्य होता है. They are miles and miles and miles and miles apart. ठीक है? तो there's this guy is the prince of Gondor और ये guy कहता है कि अगर Gondor ने मदद मांगी तो रोहान को जवाब देना पड़ेगा, right? And there's this magician called Gandalf. So Gandalf, what does he do? He goes on this mountain and lights a fire. And क्योंकि ये बहुत दूर था तो क्या हुआ, गोंडोर के आग को देखते हुए अगले माउंटेन ने फायर जला दिया.
और ये माउंटेन का फायर को देख के रोहान समझ गया कि ओके, Gondor has asked for help, right? Even though Gondor ने मदद नहीं मांगी थी. So guys, this is the same thing, your myelin sheath, this is how it works. ठीक है, आपका पोटेंशियल डिफरेंस जो माइलिन शीथ के पहले था उसको देख के माइलिन शीथ के बाद वाला रीजन पोटेंशियल डिफरेंस चेंज कर लेता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, राइट? ओके, और उसी के कारण सोडियम चैनल्स खुल जाते हैं. बीच में कोई सोडियम चैनल का आदान प्रदान नहीं करना पड़ा. गैंडाल्फ अगर चाहते भी तो इतना दूरी फिजिकली तय नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मशालों के जरिए अपना संदेश पहुंचाया. द सेम थिंग इज एप्लीकेबल इन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स. ठीक है, चलो वापस चलते हैं अपने. लेट्स क्विकली गो टू आवर लीडर बोर्ड. फिर से चलेंगे अपने लीडर बोर्ड पे. So guys, the next important stuff is that this classification of neuron जो अभी मैंने बताया, ये फंक्शनल क्लासिफिकेशन है. फंक्शनल बोले तो फंक्शन के हिसाब से बांटा. अब हमें स्ट्रक्चर के हिसाब से भी बांटना पड़ेगा ना. We have to divide them on the basis of structure, right? On the basis of structure. Okay, so how do you divide them on the basis of structure? सबसे पहला है मल्टीपोलर न्यूरॉन्स. मल्टीपोलर का मतलब है कई सारे प्रोसेसेस होंगे. देयर इज मल्टीपल प्रोसेसेस एंड परहैप्स वन एक्सॉन, राइट? देयर इज मल्टीपल प्रोसेसेस का मतलब है एक्सटेंशंस, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन्स. दैट्स अ मल्टीपोलर न्यूरॉन, राइट? दैट्स अ मल्टीपोलर न्यूरॉन. देन व्हाट इज अनदर टाइप? देयर इज अ बाइपोलर न्यूरॉन. एक होता है क्या? बाइपोलर न्यूरॉन. बाइपोलर में क्या होता है? व्हाट्स अ बाइपोलर न्यूरॉन? वन साइड विल एक्ट एज अ डेंड्राइट, दिस इज द साइटोन, एंड वन साइड विल एक्ट एज नर्व एंडिंग. दूसरा साइड नर्व एंडिंग की तरह काम करता है. सिंपल. एक होता है यूनिपोलर स्लैश स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स. इसमें क्या है? देयर इज दिस साइटोन. साइटोन से एक प्रोसेस निकलता है. एक पार्ट डेंड्राइट की तरह काम करता है, दूसरा पार्ट नर्व एंडिंग की तरह काम करता है. दिस इज कॉल्ड uni or sometimes pseudo unipolar neurons, right? So there are three basic types of neurons: multipolar, bipolar and unipolar. ठीक है, हमारे शरीर में मल्टीपोलर न्यूरॉन्स तो भरे पड़े हैं. बाइपोलर न्यूरॉन्स कुछ जगहों पे हैं, जैसे कि आपकी रेटिना में आपको बहुत सारे बाइपोलर न्यूरॉन्स मिल जाएंगे. यूनिपोलर न्यूरॉन्स, आपको इस तरह के न्यूरॉन्स आपके रिफ्लेक्स आर्क्स में काफी ज्यादा मिल जाते हैं. यू फाइंड देम इन रिफ्लेक्स आर्क्स. ठीक है, डोंट वरी, हम जब रिफ्लेक्स आर्क्स पढ़ेंगे तो इसको और डिटेल में लेकर जाएंगे. वी विल गो इनटू द डिटेल, उसके लिए आप टेंशन मत लो. बट अभी के लिए ये तीन स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन आपको पता होना चाहिए. ठीक है, क्लियर है क्या? ओके गाइस, ऑल कूल, ऑल वेल. आगे बढ़ूं क्या? यस, द वंस वी एक्चुअली ड्रॉ आर जस्ट मल्टीपोलर न्यूरॉन्स. ठीक है. So, sir, is there any reason for bipolar neuron in retina? It has to simply get in. देखो, रेटिना में आप क्लम्पिंग बर्दाश्त नहीं कर सकते बेटा. You can't बर्दाश्त दी क्लम्पिंग. Why? लाइट न्यूरॉन के थ्रू ही आ रही है, राइट? लाइट न्यूरॉन के थ्रू आ रही है. तो बाइपोलर न्यूरॉन एक एफिशिएंट डिजाइन है, राइट? इसको देखो, ये है आपका सोर्स ऑफ लाइट, ये आपका सोर्स ऑफ लाइट है. यहां है आपका रेटिना जहां पे आपके पिगमेंट्स छिपे हुए हैं. अगर लाइट को इस तरफ से जाना है और अगर बड़ा सा साइटोन में डाल दूं तो क्या होगा? नॉट हेल्पफुल, राइट? सो एक तरह से देख लो, मुझे ऐसा लगता है ये एफिशिएंट डिजाइन होगा, राइट? मुझे ऐसा लगता है दिस इज एन एफिशिएंट डिजाइन, बट इट कुड नॉट बी, राइट? जस्ट बिकॉज मुझे ऐसा लगता है डजंट मीन दिस इज हाउ इट इज. मुझे लगता है कि ये एफिशिएंट डिजाइन है. ठीक है. मल्टीपोलर का एग्जांपल, आपका ब्रेन इज फुल विथ एग्जांपल ऑफ मल्टीपोलर न्यूरॉन्स. आपके ब्रेन में कई सारे मल्टीपोलर न्यूरॉन्स हैं. ठीक है. ओके, नाउ गाइस वी विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट ब्रेन. अब हम ब्रेन की कहानी शुरुआत कर. सर बेटा, अगेन some books mention it unipolar, some books mention pseudo unipolar. The reason is
स्यूडो, देखो यूनिपोलर ना स्ट्रिक्टली यूनिपोलर तो नहीं हो सकता. दीज आर टू डेवलपमेंटल स्टेजेस, राइट. द बेस्ट अंडरस्टैंडिंग, दीज आर जस्ट टू डेवलपमेंटल स्टेजेस. पहले यूनिपोलर था, फिर स्यूडो यूनिपोलर बन गया. किसी किसी बुक में आपको डिस्टिंक्शन भी मिल जाएगा, राइट. बट एट बेस्ट दे कैन बी कंसिडर्ड एज डेवलपमेंट स्टेजेस. सिंपली आपको क्या लिखना है, साइटोन से एक प्रोसेस बाहर आ रहा है, उससे दो प्रोसेस डिवाइड हो रहे हैं, एक डेंड्राइट का काम करेगा, दूसरा नर्व एंडिंग का काम. दैट्स इट, बस. आप इसको स्यूडो यूनिपोलर कह के बोल सकते हो. क्लियर है? ठीक है. यस. व्हाट इज रिफ्लेक्स आर्क? बेटा उसके लिए थोड़ा सा रुक जाओ. रिफ्लेक्स आर्क इज अ पाथ ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन. अभी हम रिफ्लेक्स एक्शन नहीं पढ़ा है हमने, हम पढ़ेंगे उसको पीएनएस के बाद. ठीक है. ओके, कूल गाइस, आगे बढ़े. मल्टीपोलर का एग्जांपल, बेटा आपके ब्रेन भरे पड़े हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन्स से. योर ब्रेन इज फुल ऑफ मल्टीपोलर न्यूरॉन्स. ठीक है. सो व्हाई इजंट न्यूरल फाउंड इन आईज? दे लुक लाइक डिस्टेंट कजन्स. बेटा वही ना, आई डोंट वांट एनी हिंड्रेंस. सम्यक सोचो ना बेटा, अगर मल्टीपोलर को रखा तो ऐसे क्या होगा, ये वाला हिस्सा भी आपका ऑक्यूपाइड है, ये वाला हिस्सा भी ऑक्यूपाइड है. विल इट नॉट बी अ हिंड्रेंस टू लाइट? आप सोचो, मैकेनिकली सोचो, इट वुड बी अ हिंड्रेंस टू लाइट. सर स्टिमुलस क्या होता है? चेंज इन द सराउंडिंग. बेटा हमारे आसपास के वातावरण में हो रहा चेंज. ठीक है. ओके, परहैप्स दैट वुड बी द रीजन. समझे? ठीक है. बट इट इज सो स्मॉल. Beta, just because I have drawn it small, it might not exactly be efficient, right? And sort of, you don't want any, any random acts happening there, sort of. ठीक है, ये ज्यादा सॉर्टेड है, एक तरफ से आ रहा है एक तरफ से जा रहा है, कोई मिक्सिंग वगैरह का कोई चांस ही नहीं है, राइट. सो दैट इज वाई. एंड डोंट वरी, रेटिना के बारे में हम पढ़ेंगे, देन यू विल टॉक अबाउट स्पेशल टाइप ऑफ न्यूरॉन्स, गैंग्लियन सेल्स और पता नहीं क्या क्या, बहुत बहुत कंफ्यूजिंग है वो. ठीक है. तो सॉर्ट ऑफ बाइपोलर न्यूरॉन्स आर द बेस्ट डिजाइन उस तरह से, एक तरह से देखो तो. ठीक है, कोई मिक्सिंग नहीं हो रहा इंफॉर्मेशन का, कोई चांस नहीं है लाइट हिंड्रेंस का, ऐसा मुझे लगता है. ओके, बट देयर इज नो लाइक, ऐसा कोई थ्योरी नहीं है. ठीक है. ओके, नाउ विल स्टार्ट टू टॉक अबाउट ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है, अब हम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड की शुरुआत करेंगे बात करने का, राइट. सो व्हाट इज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड? दे आर पार्ट्स ऑफ योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम. एक सेकेंड मैं देख लूं कोई टॉपिक छूट तो नहीं गया. लेट मी जस्ट चेक क्विकली. हैव आई मिस्ड एनी टॉपिक्स? नो, आई हैवंट. चलो ठीक है. ओके सर, बेटा रिफ्लेक्स आर्क पढ़ेंगे, रुक जाओ. एनटीएससी का एग्जाम किस मंथ में होगा? बेटा जितना आप अज्ञात हैं उस चीज से, उतना मैं भी अज्ञात हूं. अगर आप स्टेज 1 की बात कर रहे हैं, स्टेज 1 जनरली हैपेंस इन नवंबर. ठीक है. ओके, सो गाइस, हाउ डिड ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड डेवलप? सो देयर इज अ स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं न्यूरल ट्यूब. हमारे एम्ब्रियोनिक स्टेज में एक स्ट्रक्चर होता है न्यूरल ट्यूब, नर्व कॉर्ड से डेवलप हुआ न्यूरल ट्यूब. एक ट्यूब है ये, ठीक है. और ये ट्यूब बेसिकली 3 जगह पे फूल गया. दिस ट्यूब गॉट swollen, right? This tube got swollen at 3 places, right? जो आगे वाला ट्यूब है उसको हमने कहा forebrain, and the structures that it forms are parts of forebrain. जो पीछे वाला हिस्सा है, बीच वाला, उसको कहा मिड ब्रेन, और जो लास्ट वाला है इसको कहा हाइंड ब्रेन, राइट. सो व्हेन वी डिवाइड ब्रेन, हम ब्रेन के 3 हिस्से बनाएंगे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन. एंड लेट मी बी वेरी वेरी क्लियर, ऑल दीज मीन्स ट्यूब का कौन सा हिस्सा से वो बना. ठीक है, ट्यूब के 3 हिस्सों में फूल गई चीजें, आगे वाला फोर ब्रेन, बीच वाला मिड ब्रेन, लास्ट वाला हाइंड ब्रेन, दैट्स इट. बट गाइस, हमेशा से ऐसा नहीं था. दिस थिंग
formation of brain is something that you call as cephalization. What is cephalization? बेटा न्यूरॉन्स जैसे सेल्स आपके स्पॉन्जेस में भी पाए जाते हैं। सर आप पे स्मार्ट बोर्ड नहीं है क्या? बेटा जी बेटा जी बेटा जी बेटा जी, मैं ये नहीं कहता that technology does not help you, but तरक्की के नाम पर तरक्की चाहना ही काफी नहीं है। किसी को याद है ये डायलॉग किसका है? Does anyone remember what movie this dialogue belongs to? तरक्की के नाम पर तरक्की चाहना ही काफी नहीं है। किसी को याद है किसने बोला ये डायलॉग किसका था? Anyone who identifies this dialogue? No one? Okay. So guys, this is a very famous dialogue from Harry Potter. Professor Umbridge, I think she says this. So guys, smart board, 3D, और क्या होती है? Simulations. ऐसा नहीं है that they don't help you. I totally agree, they help you. But नहीं बेटा, I don't feel bad. Why do I feel bad? It's a non-usual question. ठीक है? Okay, but right now आपको ये समझना होगा कि you need to focus on the concepts. Why? Doesn't matter. No doubt they will help, but right now you need to absorb 100% of what is in front of you, right? ठीक है, पहले इस पे ध्यान दे दो। जब स्मार्ट बोर्ड आ जाएगा तो हम क्लासेस ले लेंगे, बट अभी जब स्मार्ट बोर्ड नहीं है तो यही है ना अपने पास, राइट? सो लेट्स नॉट think about things that we don't have. Let's think about things that we have, right? चलो आगे बढ़े। Now, control coordination plants अभी समय लगेगा, बहुत समय लगेगा, ठीक है? So guys, what is cephalization? Cephalization was accumulation of neurons, right? Accumulation of neurons at a particular place, right? अगर आप evolution देखो, and don't worry, I will teach you evolution as well, right? I will teach you evolution as well बेटा। तो evolution में आप देखोगे sponges में, sponges कौन सा फाइलम था? जल्दी जल्दी बता दो। I know आप लोगों को पिछले साल ये चैप्टर नहीं पढ़ा था, सिलेबस से हट गया था एवरीथिंग, बट क्या किसी को पता है स्पॉन्जेस कौन सा फाइलम था? कम ऑन गाइस, कम ऑन, समवन, किसी ने तो पढ़ा होगा, किसी ने नहीं पढ़ा? ओके, नो वरीज, इट्स सिलेंटेरेटा, राइट? So beta Silenterata had something called nerve nets. Nerve nets मतलब bunch of neurons just forming a net. सर आपको मायोपिया है या हाइपरमेट्रोपिया? बेटा जी अगेन मीनाक्षी फोकस, एंड दिस इज जस्ट अ ब्लू आई। मेरे आंखों में प्रॉब्लम्स आ गए थे तो डॉक्टर ने बोला था भैया लेंस पहनो, ठीक है? आप इधर देखो, ओके? सो स्पॉन्जेस में बस ऐसा नर्व नेट था, हम बोलते हैं इसको नर्व नेट, राइट? बट you need more of these neurons accumulated at a particular place so that they can form more connections, ताकि वो ज्यादा connections बना पाए, and more connections means the processing power increases, right? That is why we want cephalization, and evolution favored cephalization. Annelids में और even arthropods में सबके पास छोटा ही सही बट दिमाग है, right? Some or the other form of दिमाग is there because cephalization was advantageous. Evolution favored it. Sir, sponge. Oh, thank you so much. Hydra. Guys, sorry. Thank you so much, Samyak. Oh, देखो. Beta, I'm talking about Hydra. Hydra are coelentrates. I'm so sorry. Thank you so much for pointing this out. Sponges are poriferans. Coelentrata is Hydra. Sorry. Thank you so much, Amlan. Thank you so much. Sir, आज बेटा मीनाक्षी, अब आप बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। बेटा एक चीज समझिए, मेरे लिए बार बार रुक के चालू करना is easy. Why? I know brain A to Z, but you don't know about it.
आप रास्ता भूल जाओगे अगर बार बार रास्ता चेंज करने की कोशिश करोगे, इसलिए सुनो logistical questions at the end, please. Okay, so guys, when we talk about brain, we have to understand that ऐसा अचानक से नहीं आ गया, it took millions and millions of years to form, right? So our brain is protected by your bony skull. आपके bony skull ने brain को protect कर रखा है. And just beneath the skull, you have layers of membrane, जिसको आप कहते हो meninges. Just beneath the skull, you have layers of membrane called meninges. There are three meninges, तीन meninges होते हैं, and they are called, बाहर से अंदर, dura mater, arachnoid mater, and pia mater. Right? Dura mater, arachnoid mater, pia mater. सबसे बाहर वाला, this is the outermost, ये बीच वाला है और ये सबसे अंदर वाला है, innermost. तो अगर एक रफ स्ट्रक्चर बनाना है, if I want to draw a rough structure, so let's say this is your brain. This is not your brain, don't worry, I'll give you a better picture. ये बस basic understanding के लिए. So this is your brain. Your brain has fluid filled cavity. Your brain has fluid filled cavity, and इस fluid filled cavity को आप कहते हो ventricles, right? Your brain continues to form spinal cord. आपका ब्रेन कंटिन्यू करता है स्पाइनल कॉर्ड फॉर्म करने में, और आपके ब्रेन के साथ ये जो वेंट्रिकल था ये भी कंटिन्यू करता है एज सेंट्रल कैनाल. ब्रेन के अंदर में आप उसे वेंट्रिकल कहते हो और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर आप उसको सेंट्रल कैनाल कहते हो. Your brain and spinal cord are protected by meninges. आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को meninges ने प्रोटेक्ट कर रखा है. And the outermost covering is the cranium. The outermost covering is the cranium. Sir, is meningitis related to meninges? It is definitely. बेटा जब भी itis हुआ ना, it means inflammation. किसका? आगे वाले शब्द का. बायोलॉजी के वर्ड्स को ना हमेशा पीछे से पढ़ो. Appendicitis, itis, infection, किसका? Inflammation, किसका? Appendix का. Meningitis, किसका? Inflammation, meninges का. ठीक है? So guys, there is a bony cavity of the skull, also called cranium, जो आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है. आपके ब्रेन के अंदर ये जो आपके स्पाइनल कॉर्ड में there is a छेद called foramen ovale. foramen magnum. क्या हो गया मुझे आज? Foramen magnum. Foramen magnum is a hole at the base of your skull जिससे स्पाइनल कॉर्ड निकल रहा है. So where is the origin of spinal cord? Just below the last part of the brain, that's called medulla oblongata. अभी उसके बारे में पढ़ेंगे बेटा, don't worry. ठीक है? So please check my question. So why is the fluid? I don't think it's similar. No, it's not there is no similarity. It's just called, that's the name it has been given, ventricles. No similarities. ठीक है? अम्लान. What is meningitis? Inflammation of the meninges is meningitis, right? आपके स्कल में से छेद है, that's called foramen magnum. ये foramen magnum आपका स्पाइनल कॉर्ड को बाहर आने की परमिशन देता है. Now जैसे कि हम बोल रहे थे कि स्पाइनल कॉर्ड नीचे आता है, उसी तरह bony protection is also given to the spinal cord. How do you give bony protection to the spinal cord? We give bony protection by discs of bones. There are discs of bones. इनको कहते हैं vertebrae. This is called vertebrae. There are 33 vertebrae. There should be 33 vertebrae, and that
vertebrae are together called as vertebral column. आपके vertebral column में 33 vertebrae हैं जो आपके स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करेंगे। क्लास टाइमिंग बेटा 8:30 सुबह 8 बजे रात को, 8:30 सुबह 8 बजे रात को, सुबह 40 मिनट से 1 घंटे की क्लास, रात को 1 से 1.25 घंटे की क्लास, ठीक है। ओके, नाउ ऑब्वियसली यू कैन मूव, यू कैन बेंड, है ना, आप बेंड कर सकते हो, आपका बैकबोन को आप बेंड कर सकते हो। सो व्हाई कैन यू बेंड सो मच? यू कैन बेंड बिकॉज इन बिटवीन वर्टिब्रीज देयर इज intervertebral discs, right? There is intervertebral disc. क्या कहा? Intervertebral disc which is made up of cartilages, जो आपका cartilages का बना है, that allows you this flexibility, that allows you this flexibility, ठीक है। अब last point in this picture that is important is ये जो फ्लूइड है जो हमने बोला वेंट्रिकल में होगा, इस फ्लूइड को कहते हैं CSF, राइट? दिस फ्लूइड इज कॉल्ड CSF. What is the full form of CSF? Cerebrospinal fluid. What is it called? Cerebrospinal fluid. क्यों? सेरिब्रो आपके ब्रेन में भी है, स्पाइनल स्पाइनल कॉर्ड में भी है, राइट? It is continued inside ventricles in the central canal. अब ये CSF कैसे बनता है? How are the CSF made? Sir, remain in their place? No, the major function of the intervertebral disc is movability. आपको movability प्रदान करता है, वरना आपके जो vertebrae थे वो बोनी स्ट्रक्चर है ना बेटा, वो एक दूसरे के ऊपर बार बार फ्रिक्शन क्रिएट करते, फिर हमारे लिए मूवमेंट बहुत पेनफुल हो जाता, दैट इज व्हाई, ठीक है। नाउ गाइज, व्हाट क्रिएट्स दिस CSF? सो यू हैव ब्लड वेसल्स कमिंग, आपके पास ब्लड, बेटा प्लीज ध्यान से सुनना, अब चीजें थोड़ी सी गड़बड़ होने वाली हैं, थिंग्स आर गोइंग टू गेट कॉम्प्लिकेटेड। सो यू हैव ब्लड वेसल्स कमिंग, आपके पास ब्लड वेसल्स आ रहे हैं। ब्लड vessels are surrounded by, they are surrounded by a lot of different glial cells, and finally the plasma slightly leaks out. ब्लड वेसल है, कैपिलरीज हैं, कैपिलरीज के वॉल्स थोड़े से लीकी तो होते ही हैं, ये हमें पता है, बट इस लीकीनेस को हम फर्दर फिल्टर कर रहे हैं। याद रखना बेटा, जैसे ग्लोमेरुलस क्या था, एक बंच ऑफ कैपिलरीज था, और उसके अराउंड हमने क्या लगाया था, बोमन्स कैप्सूल, इससे फिल्ट्रेशन बढ़ गया था हमारा। उसी तरह आपके पास ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स के अराउंड एक्स्ट्रा ग्लियल सेल्स चिपक जाते हैं, और एक्स्ट्रा ग्लियल सेल्स के चिपकने के वजह से व्हाट हैपेंस इज, ब्लड का प्लाज्मा फिल्टर होके CSF बनाता है। इसमें देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एपेंडाइमल सेल्स, इसमें देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्लियल सेल जिसके बारे में हमेशा पूछ लेते हैं, दैट इज एपेंडाइमल सेल्स। एपेंडाइमल सेल्स लाइन द वॉल ऑफ द वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल की वॉल को लाइन करता है, and it is responsible for circulation, production and circulation of CSF, ठीक है, production and circulation of CSF, ये आपका CSF को प्रोड्यूस भी कराता है और सर्कुलेट भी कराता है। अब आप बोलोगे सर इतना क्या सिक्योरिटी, डोंट यू थिंक दिस इज अ सिक्योरिटी फीचर? कितने लोगों को लगता है सर ये तो सिक्योरिटी फीचर है? How many of you think that this looks like, this sounds like a security feature? Sir, are these CSF sticky? Beta, it's plasma. Why will it be sticky? इसमें आयंस होंगे, ग्लूकोज होगा, ऑक्सीजन होगा, वगैरह वगैरह वगैरह. No, not need of sticky, but yeah, it would be slightly gooey maybe. It's a security feature. Okay, what are we trying to prevent it from? हम क्या रोकना चाहते हैं यहाँ?
Why are we protecting? What are we protecting ourselves from? क्या किससे बचाना चाहते हैं खुद को? किससे बचाना चाहते हैं खुद को? किससे बचाना चाहते हैं खुद को बेटा? डैमेज. किससे डैमेज है? किसका डर है हमें? What are we afraid of? है ना? ऐसा कौन है जो हमें डरा देगा? वायरसेस. ओके, ठीक है, वायरसेस. पर वायरसेस को क्या ही फिल्टर कर पाएंगे बेटा, बट ठीक है, चलो वायरसेस ठीक है, अ गुड पॉसिबल ऑप्शन. सडन अटैक ऑन ब्रेन, बेटा अटैक तो बाहर से होगा ना. मान लो डंडा मारा किसी ने, उसको थोड़ी ना सीएसएफ रोक पाएगा. ओके, गो बैक एटलीस्ट 2 लाख साल पहले. अभी से चलो 50,000 साल पहले पीछे चले जाओ. 50,000 साल पहले पीछे चले जाओ. ह्यूमंस क्या खाते थे? अभी से 50,000 साल पहले चले जाओ. व्हाट डिड ह्यूमंस ईट? डिड दे ईट पनीर, टोफू, पास्ता, पिज्जा, filtered water? Did we have any of this? No, we had plants. हम पौधे खाते थे, और पौधों में कुछ भी हो सकता है, right? We understand that there's a lot of excretory products of plants जो plant अपने डिफेंस सिस्टम के लिए बचा के रखते थे. So guys, because you ate a lot of stuff, your blood could be teeming with pathogens. आपके ब्लड में पैथोजेंस हो सकते हैं और हार्मफुल प्रोटीन्स हो सकते हैं. हमें नहीं चाहिए ये हार्मफुल प्रोटीन्स, पैथोजेंस कोई भी हमारे ब्रेन में आके घुस जाए, राइट? सो दैट इज व्हाई योर सीएसएफ is a protective mechanism to prevent harmful substances of your blood to enter the brain. Second है, it provides you a sort of buoyancy. Buoyancy की स्पेलिंग शायद मैंने गलत लिखी होगी, चेक कर लेना बाद में, राइट? buoyancy भी, क्योंकि आपका ब्रेन देखो कहाँ है. आपका ब्रेन जो है, ये जो अभी यहां से वेंट्रिकल है ना, ये यहां से निकल के आपके मेनिंजेस के बीचों बीच, ओके फंस गया. हाँ, लेट मी जस्ट जूम दिस आउट. खुल जा सिम. ये जो है वहां से निकल के आपके मेनिंजेस के बीचों बीच फ्लो होता है, ठीक है? ये जो सीएसएफ है वो आपके वेंट्रिकल से निकलकर आपके मेनिंजेस के बीचों बीच फ्लो हो रहा होता है. बायोएंसी का मतलब होता है एक सपोर्ट. कोई भी चीज को पानी में डालो ना तो वो हल्की हो जाती है. क्यों? जो डिस्प्लेस्ड वाटर है वो अपथ्रस्ट लगाती है. 9th क्लास में राहुल सर ने बताया होगा, है ना? यस अविरल, यस दैट्स ट्रू, ठीक है? सो बायोएंसी इज एन अपथ्रस्ट, right? So guys, the second important function of CSF is this. So is it like slime? But not too slimy. Too slimy होगा तो flow कैसे करेगा? It will obviously be a little bit viscous, but not too much. There's no cells there to make it viscous. So some proteins can be harmful. Yes. A lot of depositions in your brain have been associated with diseases. I think Alzheimer's is associated with some amyloid bodies or something, right? So अगर हम कोई भी accumulation हमारे brain में होता है, it's not good for us, right? Okay, बेटा इतना clear है? कुछ पूछना है पूछ लो before I proceed ahead. इतना clear है? If anything there is doubt, please feel free to ask before I proceed to giving you a diagram of the brain. Yes. Guys and girls. So guys, whenever I say guys, I mean everyone. ऐसा मत सोचना कि I'm not calling out girls. Guys, girls, same thing. Please give recap. Let's go recap. So outermost protective layer, skull. Skull के नीचे होता है 3 meninges, dura mater बाहर वाला, arachnoid mater बीच वाला, pia mater अंदर वाला, right? इनके बीच में प्रोड्यूस हो रहा होता है, इनके बीच में फ्लो हो रहा होता है सीएसएफ, जो उसको बायोएंसी प्रदान करता है. अब ये सीएसएफ कहां से आया? आपके ब्लड और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीचों बीच एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है जिसको हम कहते हैं वेंट्रिकल,
एंड स्पाइनल कॉर्ड में कह दिया उसको सेंट्रल कनाल, ठीक है। नाउ meninges protect the spinal cord as well and vertebrae protect the spinal cord as well. vertebrae के बीच में होता है आपका intervertebral disc, right, and then there is a foramen magnum. बेटा ये पूछ लेते हैं कभी कभार, foramen magnum is a hole in your skull जिससे आपका spinal cord नीचे आता है. Okay, this is all that we have done. नहीं 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 अभी नहीं हुआ, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ बेटा, रात वाली क्लास मैंने बोला था लंबी होगी, है ना, 1.25 घंटा तो कर सकते हैं बेटा. देखो मुझे भी भूख लगी है एंड इन माय फ्रिज देयर इज अ वेरी गुड ट्रेडिशनल मिठाई ऑफ भागलपुर, वी कॉल इट गाजा. सो आई एम जस्ट रियली होपिंग कि जल्दी से जाके आई विल हैव दैट. और मुझे अभी जाके पनीर पराठे भी बनाने हैं. ओके, व्हाट इज सेंट्रल कनाल? वेंट्रिकल ब्रेन के अंदर है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी अम्लान. स्पाइनल कॉर्ड के अंदर उसी कैविटी का नाम सेंट्रल कनाल पड़ जाता है. ठीक है, ओके, क्लियर है? ओके, आगे बढ़ें गाइस. डू आई हैव योर गो हेड? यस सर, अब तो कुछ भी पढ़ा लो, इतना समझ में आ गया, अब तो कुछ हमें परेशान कर ही नहीं सकता. चलो, तो ब्रेन के पार्ट्स कौन कौन से? बस ब्रेन का पार्ट बना लो आज, एक एक पार्ट डिटेल में अगली क्लास में पढ़ेंगे, आज नहीं पढ़ेंगे, टेंशन मत लेना, बस बना लो आज, क्योंकि बेसिक एनाटॉमी पता होना चाहिए. ठीक है. सो व्हेन आई टॉक अबाउट ब्रेन, जब ब्रेन के हिस्सों की बात करेंगे, सो वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट अ फ्यू हिस्सा. वी सेड ब्रेन मस्ट हैव 4 ब्रेन, it must have midbrain and it must have hindbrain. Right? 4 ब्रेन का 2 हिस्सा होता है. सेरिब्रम, एनाटॉमी मींस स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर को एनाटॉमी कहते हैं, और डायएनसेफेलॉन. 4 ब्रेन का 2 हिस्सा होता है, सेरिब्रम एंड डायएनसेफेलॉन. डायएनसेफेलॉन के हमें फर्दर 3 हिस्से पढ़ने हैं. एपिथैलेमस, थैलेमस, घबराना मत, इसीलिए मैं ये आज पढ़ा रहा हूं ताकि अगली क्लास में आप रिवाइज करके आ सको. ठीक है, घबराना मत, नाम सुन के सब आसान होगा, एक बार आप तस्वीर बना लोगे तो. ठीक है बेटा, सेरिब्रम के जस्ट नीचे, इसीलिए बोल रहा हूं बेटा अभी इतना डिटेल पढ़ो, धीरे धीरे हम ओवरले करते जाएंगे. ओल्फैक्टरी लोब प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के नीचे होता है, हम पढ़ेंगे, डोंट वरी. अभी जितना डिटेल कर रहे हैं, अभी बेसिक इतना डिटेल, इसके ऊपर ओवरले करेंगे. ठीक है. मिड ब्रेन का मतलब सिर्फ मिड ब्रेन, नथिंग एल्स. वी विल नॉट टॉक अबाउट कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना वगैरह वगैरह वगैरह, अभी नहीं. मिड ब्रेन मतलब अभी के लिए सिर्फ मिड ब्रेन. हाइंड ब्रेन के कौन कौन से हिस्से आपको पढ़ने हैं? पॉन्स, also known as pons veroli, medulla, also called by the name medulla oblongata, and the last but not the least, cerebellum. Now these are rough demarcations. When we finish all of discussing each of these part in detail, which will take at least 2 more lectures, uske baad we'll talk about 2 functional systems of the brain. Functional systems of the brain are systems that are distributed in more than one of these parts. Right? एक बार हम इन सारे parts को डिटेल में कर लेंगे. Sir, it shouldn't be endo. No बेटा, it's neuroendocrine. आएंगे बेटा, एक एक करके जब डिस्कस करेंगे आएंगे उस पे. ठीक है. So guys, once we complete discussing each of these parts in detail, we'll talk about 2 functional systems. One is the limbic system and the second one is RAS. Limbic system is the emotional brain which is distributed in cerebrum and diencephalon, and RAS is again parts of cerebrum and others which keeps you awake. आपको conscious बनाकर रखता है. That is called reticular activating system. हम इन 2 functional system के बारे में briefly पढ़ेंगे. ठीक है, बट पहले इन सबको डिटेल में कवर करना है. बट आज की क्लास में डिटेल में कवर नहीं करना, आज की क्लास में बस इनका जगह देखना है, वेयर आर दे फाउंड. ठीक है, चलो पेंसिल पेपर ले लो, क्योंकि बनाना पड़ेगा, बनाओगे नहीं तो याद नहीं रहेगा. मैंने भी बहुत बार बनाया इसलिए मुझे याद है. नीचे से बनाना स्टार्ट करेंगे. सो सबसे पहले ड्रॉ समथिंग लाइक दिस. ये बना दिया स्पाइनल कॉर्ड.
स्पाइनल कॉर्ड के ठीक ऊपर बनाओ ऐसा 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 ऐसा, नहीं ऐसा नहीं बेटा, ऐसा, हाँ, right? This is the first part and that's called, why do I always label at different places? This is medulla, right? अब मेडुला के ऊपर एक और चीज ऐसे बनाओ, दिस, एक सेकेंड, लेट मी ऑटोमेटिक स्नैप शेपिंग ऑफ करने दो। दिस इज कॉल्ड पॉन्स, ये है पॉन्स, ठीक है। अब इसी के पीछे आई नो नॉट द ब्यूटिफुल डायग्राम, बट क्या करें, बनाना पड़ता है, राइट? व्हाट इज दिस? दिस इज सेरेबेलम। नीचे से बना रहे हैं। सर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन द प्रीवियस स्लाइड? अदिति बेटा अब बना लो, बीच में रुके तो दिक्कत। ओके ओके ओके, व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपेंड? अदिति बेटा अभी ये बना लो, डोंट वरी, आप उसका रिकॉर्डिंग देखना और अगली क्लास में पूछ लेना बेटा। अगर अभी मैं पीछे गया तो इशू होगा, प्लीज अभी आपको ये बनाओ, अभी आप ये बनाओ, बाद में वो देखेंगे, ठीक है? अभी बेटा ये बनाओ, बाद में देखेंगे वो, थोड़ा नीचे करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, ठीक है, एवरीवन रेडी? ओके, अब जल्दी से बना दो मिड ब्रेन, छोटू सा मिड ब्रेन। व्हाट इज दिस? दिस इज मिड ब्रेन। नाउ बी वेरी केयरफुल इन ड्रॉइंग, अब बहुत ही केयरफुली ड्रॉ करना। ओके okay, draw something like this, two dandas here, you have to draw two dandas here and two dandas पीछे, दो डंडा आगे दो डंडा पीछे, right? पीछे वाला part is epithalamus, बीच वाला part is thalamus, ये वाला part is hypothalamus, okay? Epithalamus, thalamus and hypothalamus, epithalamus, thalamus and hypothalamus। बना लिया सबने? आगे बने नेक्स्ट स्टेप। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज, नेक्स्ट स्टेप, एक सेकंड बेटा, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। चलो ठीक है, ऐसा कलर चल जाएगा। नाउ ड्रॉ समथिंग लाइक दिस एंड ड्रॉ समथिंग लाइक दिस। डोंट वरी ये क्या है मैं बता दूंगा, अभी के लिए चलो यार लेबल तो कर ही लेते हैं। अभी के लिए डोंट वरी ये क्या है, मैं बताऊंगा बाद में क्या है, ठीक है? अभी के लिए बस लेबल कर लो, अभी हम डिटेल जैसे पढ़ेंगे सब समझ में आ जाएगा, ठीक है? उसको लेबल कर लो कॉर्पस कैलोजम, ठीक है? एंड फाइनली ड्रॉ समथिंग लाइक दिस। सर प्लीज यूज लाइट कलर्स बेटा, मतलब आई एम रनिंग आउट ऑफ कलर्स, सॉरी, आई एम रनिंग आउट ऑफ कलर्स, क्या करूं मैं? दिस इज सेरिब्रम, राइट? वो हो गया आपका सेरिब्रम। ओके गाइज, इस क्लास में बस आपको ये बनाना सीखना है, अगली क्लास में एक एक करके समझेंगे। सर इज अ थ्रेशोल्ड अराउंड 55 -30 होता है शायद बेटा, सम्यक यार मुझे ना वैल्यूज याद नहीं रहती यार। 55 तो एक्शन होगा या 70, -70 से 55 तक जाता है, आई थिंक 30 होगा, एक बार चेक करना पड़ेगा। सर अभी से नीट की प्रिपरेशन करना शुरू कर दें तो कितने घंटे पढ़ें? बेटा अभी से बस वो एप्टीट्यूड डेवलप करो, नीट का प्रिपरेशन मत करो। अभी आप जो भी पढ़े ना थोड़ा ज्यादा पढ़ लो बस, ठीक है? कितने घंटे वगैरह मत सोचो, नॉर्मली जैसे पढ़ते हैं ना हर रोज स्कूल के सिलेबस, सेल्फ स्टडी एवरी डे शुड बी एटलीस्ट 2 आवर्स, एटलीस्ट दो घंटे सेल्फ स्टडी होनी चाहिए। सर दिस इज द डाइसेक्टेड डायग्राम, यस। व्हाट इज थ्रेशोल्ड? बेटा थ्रेशोल्ड इज द मिनिमम वोल्टेज दैट शुड बी टू initiate the action potential, 38 peak of the graph।
बेटा वही -30 होता है शायद, एक बार मैं चेक कर लूंगा, समय मैं चेक कर लूंगा, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर द पिक्चर, सॉरी द वैल्यू, ठीक है, मैं आई जस्ट चेक एंड लेट यू नो, ठीक है। ओके गाइस, ये डायग्राम बन गया, डायग्राम बन गया। शुड वी इंक्लूड योर लेक्चर्स इन सेल्फ स्टडी? यस यू कैन, बट अब पूरे लेक्चर को अगर आप देख रहे हो दैट इज नॉट सेल्फ स्टडी। मतलब पूरा लेक्चर को अगर आप देख रहे हो फिर वो सेल्फ स्टडी के 2 घंटे में काउंट नहीं होना चाहिए। दैट सेल्फ स्टडी का 2 घंटा इज योर एप्लीकेशन वाला एरिया। मतलब आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, किसी चीज को रिवाइज कर रहे हो, तो अगर आपने 1 घंटे का लेक्चर को भगा भगा के 10 मिनट में देखा फिर कंसिडर करना, पर अगर पूरा लेक्चर बैठ के आप देख रहे हो फिर वो सेल्फ स्टडी नहीं हुआ, ठीक है। ओके गाइज, ये डायग्राम क्लियर है? किसी को कोई परेशानी, एनीथिंग दैट वाज नॉट क्लियर इन दिस डायग्राम? ये डायग्राम क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगली क्लास में मैं उठा के फंक्शंस बताना स्टार्ट कर दूंगा कि भाई सेरिब्रम, सेरिब्रम कॉर्टेक्स, सेरिब्रम लोब, सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स, कॉर्पस कैलोजम, एसोसिएशन एरिया, सेंसरी एरियाज, मोटर एरियाज, फटाफट फटाफट नए नए नाम आएंगे, तो ये डायग्राम क्लियर होना चाहिए। फिर आप मत बोलना कि सर हाइपोथैलेमस कहां था सर, नो नो नो, दैट वुड नॉट वर्क, ठीक है। क्लियर है? एनी प्रॉब्लम अभी पूछो बेटा। बहुत लोग जा चुके हैं मुझे दिख रहे हैं, बट क्या कर सकते हैं। ओके सो गाइस, दिस इज सर, बट इफ द वोल्टेज हायर देन द रेस्टिंग वोल्टेज देन हाउ, नहीं 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 बेटा, रेस्टिंग वोल्टेज -70 है ना, इसको शायद उठा के -30 तक ले जाना पड़ता है। जैसे बेटा नेगेटिव में लोअर इज हायर, मैथ्स वाला याद है, लोअर इज हायर समया, तो इसको शायद उठा के अगर -30 तक आप ले गए, इतना काफी होता है सोडियम को खोलने के लिए। जैसे सोडियम को खोलोगे वो और पॉजिटिव हो जाएगा, यानी अभी माइनस क्यों था, अंदर नेगेटिव बाहर पॉजिटिव था, उसी को तो उलटना है, पलटना है हमें। सर एपिथैलेमस इज बल्जिंग काइंड ऑफ एरिया फ्रॉम थैलेमस, हाँ ठीक है। चलो सो गाइज, अगला लेक्चर आपका, मैं आपको क्विकली दिखा दूं कि हमारा स्केड्यूल कैसे चल रहा है। आई विल क्विकली शो यू द स्केड्यूल। Entire part is diencephalon, yes. Thalamus, epithalamus, hypothalamus, all three they stand for the diencephalon. Guys, ये आपके टाइमिंग्स है यूट्यूब के, सुबह 8:30 बजे और रात को 8 बजे। ट्यूसडे थर्सडे इज फॉर ग्रेड 9, सुबह 8:30 बजे रात को 8 बजे। मंडे वेंसडे फ्राइडे इज फॉर ग्रेड 10। अगले महीने से दिस इज गोइंग टू चेंज as per our discussions between me, between Soumya ma'am and I, we will tell you about it, don't worry, ठीक है। IJSO विजेता 125 पे मंडे वेंसडे, प्लस क्लासेस 3 बजे जो कि कल होने वाला है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पर, उसको मिस मत करना। So mapping of the brain, beta, I think it was done by someone called Bradman or something in 1900s, पहले दशक में किया गया था। He was trying to identify areas of the brain. बट उसके बाद अब हमारे पास ना कॉम्प्लिकेटेड MRIs एंड टोमोग्राफीज है, तो अब हम हर एक, हमने शायद 92 और एरियाज ऐड कर दिए। उस बंदे ने 52 एरियाज को मैप किया था कि इस रीजन का जगह काम ये है, बट अब हमने शायद 90 और एरियाज ऐड कर दिए। आई विल टेल यू ब्रीफली अबाउट इट, थोड़ा थोड़ा मैं इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। दैट इज कॉल्ड ब्रेन मैपिंग, कि कौन सा हिस्सा क्या काम करता है, ठीक है। सो गाइज, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द इंपॉर्टेंट मास्टर बैच जो एनटीएसई स्टेज 1 का स्टार्ट हो रहा है और एनटीएसई स्टेज 2 का लेट्स क्रैक एनटीएसई स्टेज 2, ठीक है। और गाइज इसके बाद इस बार तो मेगा कॉम्बैट चला गया, बट हर वीकेंड में एक ना एक कॉम्बैट होता है बेटा। कॉम्बैट से आपको स्कॉलरशिप्स मिल सकती है, एंड with these scholarships you can get a plus or iconic subscription, जिसमें there's this new feature called ask and doubt, unlimited doubts आप उसमें पूछ सकते हो, और उस doubts के आपको इंग्लिश हिंदी सॉल्यूशंस मिल जाते हैं, राइट। कैसे करना है, सिंपली जाओ ask a doubt पे क्लिक करो, पिक्चर लो और भेज दो, राइट। बट बेटा रिमेंबर, एक बार में एक सवाल पूछना। अब एक बार में पूरा क्वेश्चन पेपर छापोगे तो फिर सामने वाला मेंटोर बोलेगा फिर तो मैं क्या ही करूं, है ना। सो ऐसे मत करना, एक बार में एक डाउट करो, एंड आप डायरेक्टली बुक से लेना है, ठीक है, लिखना है लिखो, बट इट शुड बी लेजिबल। वैसा नहीं एकदम ब्लडी फोटो भेजा, बेचारे को दिखेगा ही नहीं तो कैसे आंसर करेंगे, ठीक है। पीडीएफ आई विल ट्राई टू शेयर बेटा, मैंने शायद पहला पीडीएफ नहीं शेयर किया है, मैं वो शेयर करके इसको भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। अमलान, ओके, वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दिस। ओ बग्स बाउंटी, बेटा बग्स बाउंटी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ एनी एजुकेटर्स गलती ने कुछ कर दिया, कुछ बोल दिया, you can obviously report it for inappropriate content. Do not misuse it, varna you know what can happen, right? So
Unacademy Plus और Iconic सब्सक्रिप्शन में रिमेंबर 10% ऑफ बाय यूजिंग द कोड SONA05। बेटा अगर ये कोड्स आपको मिल रहे हैं इसका इस्तेमाल कीजिए, राइट। मेक श्योर कि आप यूज करो, जब है तो व्हाई नॉट यूज इट, राइट। सो गाइस डू रिमेंबर टू डाउनलोड द अनअकैडमी ऐप। पहले फ्री सेशंस ट्राई कीजिए, वंस यू आर कन्विंस्ड देन गो फॉर द प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। लाइक तो जरूर करो वीडियो को, बिकॉज दैट इज हाउ वी गॉज कि वीडियोस कितने सक्सेसफुल हैं। शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ एंड डू रिमेंबर टू सब्सक्राइब टू द चैनल, राइट। आई विल सी यू पीपल टुमारो 8:30 प्रोटिस्टा का क्विज के साथ और रात को फंजाई के साथ, ठीक है। सो कल 4 क्लासेस हैं, 8:30 सुबह और रात को 8 बजे। कल ट्यूसडे है तो 3 बजे आपकी क्लास होगी। कौन सी बेटा? आपकी कल 3 बजे क्लास होगी प्लस की, ठीक है। बाय, गुड नाइट। आई एम लीविंग, गोइंग टू मेक पनीर paratha maybe and then have it delicious things. I hope you people have had good food. Good night, sweet dreams. Thank you so much guys. Bye bye, take care.